Hello friends, welcome in Parsham video lecture. Today we will study social science. Standard 6, chapter 15. Chapter 15 है government. तो फिर चलो start करते हैं. Our country India is the largest democracy in the world. Elders do the administration and management of the home. Similarly, the administration of a country is done by the government. We hear the word government in daily newspapers, television or in conversation. Government is needed to run the administration of the nation and to take decisions. Government works in the planned way for the development of the country. Keeping constitution in mind for nation, reformation and implementation is done by the government. The government of our country is elected through voting by people. Seeing the above picture, we can know about various functions, decision and advertisement of the government. We can get information about various functions of the government by reading daily newspapers and magazines available in our surrounding. Democracy means of the people, by the people, for the people. In democratic system of governance, government holds the foremost place. हमारा चैप्टर 15 है गवर्नमेंट. गवर्नमेंट शब्द आपने टीवी पे, न्यूज़ में, मोबाइल में या फिर न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा. गवर्नमेंट मतलब कि सरकार. बच्चों, आप अपने घर में देखते होंगे कि हमारे घर के जो बड़े होते हैं वो घर का पूरा मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं. ठीक उसी तरह हमारी कंट्री का मैनेजमेंट यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट करती है. देश का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए डिसीजन लेने पड़ते हैं तो वो गवर्नमेंट लेती है. देश का डेवलप करने के लिए प्री प्लानिंग करने पड़ते हैं और इन सब बातों को ध्यान में रखकर कुछ कायदे भी बनाने पड़ते हैं गवर्नमेंट को. फिर उसको फॉलोअप भी सरकार हमको कराती है. हमारी इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. अब आप बोलोगे कि डेमोक्रेसी मतलब क्या? मैं बताती हूँ आपको. डेमोक्रेसी का मतलब है फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल. लोगों से बनी हुई, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए. आवर कंट्री, आवर गवर्नमेंट. आवर कंट्री इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी. Ours is the largest democracy in the world with the maximum number of voters. Due to the vastness and diversity of the country, it is difficult to manage from one place. That is why government works at various levels to administer smoothly against some problems and difficulties. Local self-government, state government and central government work in the democratic system of governance. Our country is a country of diversity. India is the largest democracy in the world. पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा वोटर्स इंडिया में है, यानी कि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है. पूरे विश्व में इंडिया की पॉपुलेशन सेकंड नंबर पे है. इसलिए इंडिया में वोट देने वाले यानी कि वोटर्स भी ज़्यादा है. हमारा देश बहुत बड़ा है, इसलिए एक ही जगह से पूरे देश का मैनेज हम नहीं कर सकते. इसलिए इसको अलग अलग कार्यों में बांट दिया गया है. डेमोक्रेसी में लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरीके से कार्य क्षेत्र को हमने बांट दिया है. लोकल गवर्नमेंट टेक्स द चार्ज ऑफ विलेज और सिटी. लोकल गवर्नमेंट जो है वो विलेज और सिटी का कार्य देखती है. स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने स्टेट का कार्य देखती है. सेंट्रल गवर्नमेंट वो अपने पूरे यानी कि पूरे देश का कार्य करती है. गवर्नमेंट इज नेसेसरी एट वेरियस लेवल्स. दीज वेज ऑफ गवर्नेंस आर वेरी यूजफुल फॉर फॉर्मेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स. वी हैव लर्नड अबाउट गवर्नमेंट एंड इट्स वेरियस लेवल्स. These levels are useful for development and maintenance of law and order. Democratic system has been adopted in our country in the context of government and governance depending on its structure. Variations are seen in governance system. Types of governments.
Our country has democratic system of governance. All the countries in the world do not have democratic system. Let us understand the types of government found in the various system operating in countries around the world. First वाला है democratic government. In this system of government, people elect the representative through voting. The government is formed by the winning candidates. Government functions keeping the public in the center in the democracy. Local government, state government, central government are formed through the election. In some countries, chief minister or a prime minister is elected by the elected representative in democracy. In some countries of the world, presidential democracy is seen. In India, there is a parliamentary democracy. हमारे देश में डेमोक्रेसी सिस्टम है, सभी कंट्री में ये सिस्टम नहीं है. चलो फिर इसके टाइप्स देख लेते हैं गवर्नमेंट के. फर्स्ट वाला है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी मतलब फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल. लोगों से बनी हुई, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए. इस सिस्टम में लोग वोट करके अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं. इलेक्शन में जो कैंडिडेट्स जीतता है वो सरकार का फ्रेम बनाता है. इस सिस्टम में लोगों को ध्यान में रख के सरकार कार्य करती है. इलेक्शन के माध्यम से लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ये सब बनता है. कई देशों में ऐसा होता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की पसंदगी भी वो लोग कर लेते हैं, पर हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है. इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है. इट इज सेड फॉर डेमोक्रेसी दैट गवर्नमेंट इज रन बाय द पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू इलेक्शन. देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ डेमोक्रेसी फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. Thus, democratic government is very important for the all-round development and rights of the people. In democratic government, people play an important role. Government also works for the people. The tenure of elected government in our country is 5 years. देखा जाए तो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में लोगों से सरकार बनी हुई है, लोगों के लिए बनी हुई है, लोगों के राइट्स डेवलपमेंट के लिए, इन सब के लिए डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में लोग ही सरकार है और सरकार लोगों के लिए काम करती है. हमारे देश में गवर्नमेंट की अवधि 5 साल की है. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कम्युनिज्म. In this type of governance, the importance of equality or similarity is given to all. The government operating on the basis of communism manages the system of governance on the basis of equality and similarity. In many countries of the world, government working on the ideology of communism is seen. In some countries of the world, communism government is formed through election. There are many examples of some rulers forming a government based on communism ideology and becoming the sole ruler in the long run. The administration and governance is done considering economical, ideological and intellectual equality among workers, laborers and exploiting people. Today, some rulers who rule individual or forcible have left communism and adopted monarchy or dictatorship. Communist ideology is known in the world as the leftist ideology, डाबेरी ideology. Communism यानी कि साम्यवाद, made by Karl Marx in 19th century. ये एक अलग तरह का सिस्टम है. ये सिस्टम ये कहता है कि देश की सभी संपत्तियों पर सबका बराबर हक है, बराबर अधिकार है. न किसी का कम न किसी का ज़्यादा, सबका बराबर का अधिकार है. और सरकार जो है इस अधिकार की
केयरटेकर वाली भूमिका में रहेगी। विश्व के कई देशों में इलेक्शन के माध्यम से साम्यवादी सरकारें बनी है। कुछ देशों में साम्यवादी सरकार बनने के बाद लंबे समय तक एक तरफी शासक बने हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल है। इस सिस्टम में मजदूर, श्रमिक और शोषित लोगों को आर्थिक, बौद्धिक और वैचारिक साम्यताओं के आधार से सरकार चलाई जाती है। कई रूलर्स इससे परे होके राजाशाही यानी कि मोनार्ची या व्यक्ति केंद्रीय शासन करते हैं। इस सिस्टम को लेफ्टिस्ट विचारधारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मोनार्ची। इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट एनी वन पर्सन गवर्नस एज अ रूलर। जनरली द टाइटल ऑफ रूलर इज इनहेरिटेड. People do not have right to choose their ruler in this type of governance. Today, monarchy is seen in some countries of the world. At some places in monarchy, elections are held for namesake. In monarchy, the ruler takes the decision, keeping himself in the center. The decision taken by one person here is considered the final. Emphasis is placed on the well-being and convenience of the ruler rather than peoples. इस सिस्टम में बोला गया है कि कोई एक व्यक्ति रूल करता है, जो पहले हमने हिस्ट्री में देखा है। ऐसी सिस्टम हुआ करती थी कि कोई एक व्यक्ति राजा होता था, फिर रूल करता था, फिर राजा का बेटा राजा ही बनता और रूल करता। ऐसे सिस्टम में लोगों को अपनी सरकार बनाने का राइट नहीं मिलता था। ऐसी सरकार में जो राजा है वो जो भी डिसीजन लेता है वो आखिरी ही माना जाएगा। इस सिस्टम में लोगों का डेवलपमेंट या फिर फैसिलिटीज़ को इम्पोर्टेंट नहीं दिया गया है, बल्कि जो राजा बना है उसको इम्पोर्टेंट दिया गया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी। वी हैव सीन दैट रूल इज कैरिड आउट एट लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल. डेमोक्रेसी फंक्शंस फॉर द अपलिफ्टमेंट of living standard and well-being of the people. People and their needs are kept in center while planning for the future. Democratic rulers, the government, so that the people cast vote in their favor. Democratic values are preserved on the basis of constitution. Development and well-being of the people are given importance in democracy. The government must make plans and schemes to ensure equality, security and convenience to everybody. हमने देखा कि डेमोक्रेसी सिस्टम में लोकल, स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल पे काम किया जाता है। लोगों का स्टैंडर्ड बढ़े, उनका डेवलपमेंट हो, इन सब बातों को ध्यान में रख के फ्यूचर प्लान बनते हैं। लोग सरकार के फेवर में वोटिंग करें, इसी तरह से सरकारें मैनेज करती है। लोगों की सुख सुविधाएं और उनका डेवलपमेंट हो, उसको इम्पोर्टेंट देते हुए संविधान के आधार पे लोकशाही काम करती है। लोगों को समानता, सुरक्षा, सुविधाएं मिले, ऐसे प्लान बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है गवर्नमेंट एंड लॉज। फ्रेमिंग ऑफ लॉज इन द वर्क ऑफ गवर्नमेंट। ऑल शुड फॉलो द लॉज. Various laws have important place for working of government. Government has power to amend laws along with their implementation. People can challenge the government laws. People can seek cooperation of courts for their rights and against injustice done to them. In the context of the law or procedure of the government, when people feel that they are not implemented properly, they can raise their voice in the court. The court may suggest or order the government for various issues wherever the need is felt. Government and laws. गवर्नमेंट यानी कि सरकार और कायदे। गवर्नमेंट का काम है कायदे बनाना। ये कायदे सबको फॉलो करने हैं। गवर्नमेंट को ये भी राइट है कि जो कायदे बने हुए हैं उनमें थोड़ा सा चेंज भी कर सकती है। गवर्नमेंट के कायदे और उनके काम के संदर्भ में
अगर लोगों को लगे कि इन सब का इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है तो लोग कोर्ट में जा सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर कोर्ट गवर्नमेंट को सजेस्ट भी कर सकती है या फिर ऑर्डर भी दे सकती है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 15 हमारा कंप्लीट हुआ। आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा। बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं कुछ नया लेके।